بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ محض اتفاق تھا کہ مجھے والد صاحب کی وفات کی اطلاع مل گئی۔ میں تو اپنے گھر، محلے اور برادری کے لیے چلاوا بن گئی تھی۔ میں کبھی کبھی کسی کو دیکھ لیتی تھی، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک روز اپنی ایک پرانی سہیلی نظر آ گئی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں ایک باغ میں شکار کی تلاش میں گھوم پھر رہی تھی۔ اپنی جان پہچان کے لوگ نظر آتے رہتے تھے، لیکن بورکے میں مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ سہیلی نظر آئی تو مجھے بچپن یاد آ گیا۔ میری بڑی پیاری سہیلی تھی۔ میں نے اسے روک لیا، چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، اسے بلایا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ پہلے تو حیران ہوئی، پھر رو پڑی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں، شادی کر لی ہے، خاوند کیسا ہے، گھر کیوں نہیں آتی؟ میں نے جھوٹے جواب دیتے اور اسے یہ نہیں بتایا کہ میں نے شادی تو نہیں کی، لیکن خاوندوں کی کمی نہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ ہمارے محلے کی رہنے والی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جنازہ کل 10 بجے اٹھے گا۔ میں دوسرے دن 10 بجے قبرستان کے راستے میں جا کھڑی ہوئی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد جنازہ آیا۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو اور محلے کے بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ میں نے بورکے کے دونوں نقاب گرائے ہوئے تھے۔ جنازہ دیکھ کر میں تیز تیز قدم اٹھاتی قبرستان کی طرف چل پڑی۔ قبرستان دور نہیں تھا، وہاں جا کر میں جنازہ گاہ کے قریب ایک قبر پر کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ جنازہ میرے پاس سے گزرا تو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میں بھاگ کر والد صاحب کی میت کے پاؤں پر سر رکھ کر معافی مانگنے کو بےتاب ہو گئی تھی۔ باپ بیٹی کو لمبی جدائی کے بعد آخری بار اسی طرح ملنا تھا۔ میں نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے اور سینے سے اٹھتی ہوئی چیخوں کو روک لیا۔ میں اس قبر کے سرہانے بیٹھ گئی جس کے پاس میں کھڑی تھی۔ مجھے ماں یاد آ گئی۔ میری ماں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں اجنبی قبر پر ہاتھ رکھ کر اتنا روتی کہ ہچکی بن گئی۔ مجھے گھر سے نکلے 4 سال گزر گئے تھے۔ میں اتنے عرصے بعد اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، اس حال میں کہ میرے باپ کا جنازہ اٹھائے میرے قریب سے گزر گئے تھے۔ ذرا آگے جا کر میرے ایک بھائی نے جنازے کو کندھا دیا تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب والد صاحب مرحوم مجھے کندھے پر اٹھائے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے تھے۔ وہ 17 اگست 1947 کا پچھلا پہر تھا۔ اس وقت میری عمر 6.5 سال تھی۔ میرے 2 بھائی ساتھ تھے، ایک کی عمر 12 سال اور دوسری کی 16 سال تھی۔ ہندوستان کے پانی کا آخری گھونٹ پاکستان کی سرحد سے 2-3 میل دور ایک گندے جوہر سے پیا تھا۔ میں اللہ کی درگاہوں کی روندی ہوئی بیسواں ہوں، آبرو باختہ ہوں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ مجھ جیسی بیسواں کا کوئی مذہب اور کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن میں اگست کے مہینے کی عظمت کو فراموش نہیں کر سکتی، اگست کے شہیدوں کو نہیں بھول سکتی جو پاکستان کے نام پر ذبح ہو گئے تھے، زندہ جل گئے تھے، ہجرت میں پیاسے شہید ہو گئے تھے۔ مجھے اگست کے مہینے میں اتنے یاد آتے ہیں کہ کئی دن روتی رہتی ہوں۔ میری محبت بھی اگست کے مہینے میں شہید ہوئی تھی۔ میں نے اگست 65 میں اسے اپنے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر کے راستے پر خدا حافظ کہا تھا۔ لوگ اگست کی برسات کو رومان انگیز کہا کرتے ہیں۔ ساون کے مہینے کو شاعروں نے عشق و محبت سے وابستہ کر رکھا ہے، مگر ساون کا مہینہ برستا ہے تو میں کہا کرتی ہوں کہ آسمان رو رہا ہے۔ میں جب تک آپ کو اگست 1947 کی ساری روایات نہیں سناؤں گی، اپنی کہانی کو مکمل نہیں سمجھوں گی۔ میں نے ہندوستان کے ایک گندے جوڑ کا ذکر کیا ہے جس سے میں نے پانی پیا تھا۔ اس سے 15 میل دور ایک قصبہ ہے، میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ میں 2 بھائیوں کے بعد اس قصبے میں پیدا ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میری پیدائش پر میرے والدین نے کوئی خوشی نہیں منائی ہوگی۔ ہمارے ہاں لڑکی کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی، بعض گھروں میں ماتم تک کیا جاتا ہے۔ والدین کو ڈر ہوتا ہے کہ لڑکی مجھ جیسی نکلی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر میرے والدین نے میری پیدائش پر خوشی نہیں منائی تھی تو اچھا کیا تھا۔ میں نے بڑی ہو کر انہیں بدنامی کے سوا دیا ہی کیا ہے۔ ہمارے قصبے میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا، اسے میں اسکول میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ مسجد نہیں تھی
माहौल मस्जिद वाला ही था। जूं जूं मेरी उम्र आगे बढ़ती जा रही थी, ये स्कूल मेरी यादों पर गालिब आता जा रहा है। जहन में उसका तस्वर दिन ब दिन साफ और वाज़ेह होता जा रहा है। बूढ़ा सा एक उस्ताद था, अरबी और उर्दू का कायदा पढ़ाया करता था और गिनती भी याद कराता था। इस स्कूल की 4 जमातें थीं। पहली जमात में बच्चे और बच्चियां इकट्ठे पढ़ते थे। दूसरी जमात से क्लासें अलग हो जाती थीं। हम चटाइयों पर बैठा करते थे। यह स्कूल एक पुराने मकान में था। कस्बे के मुसलमान उसे खुद ही चला रहे थे। मजहब और उर्दू ज़बान पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। मैंने पहली जमात उस स्कूल में पढ़ी और दूसरी जमात में चली गई, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ थीं। हमारी तादाद कुल 16 थी। इस वक्त लड़कियों को पढ़ाने का रवाज नहीं था। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि वो ज़माना गुजर गया जब लड़कियों को अनपढ़ रख कर 12-13 साल की उम्र में पर्दे में बिठा लिया जाता था और फिर वो सारी उम्र कैद में गुजार दिया करती थी। मुझे इल्म नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। 6 साल की उम्र के बच्चों को सियासी सरगर्मियों से क्या वास्ता। मगर मुल्क में सियासी इनकलाब आया तो मुझ जैसे न जाने कितने हजार या कितने लाख बच्चे कुचले गए, ज़िबा हो गए। अपने बचपन का वो दिन 1000 कोशिश करूं तो भी ज़हन से नहीं निकाल सकती, जिस दिन मेरे छोटे से स्कूल को सिखों ने आग लगाई थी। उस वक्त स्कूल खाली था। मुझे 2 दिन पहले ही माँ बाप ने स्कूल जाने से रोक दिया था। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, मज़ीद छुट्टियों की खुशी हुई, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि स्कूल क्यों बंद है। मुझे ये भी याद है कि हमारे वालिदैन घबराए घबराए से थे। उन्होंने हमें घरों से दूर जाने से भी मना कर दिया था। मेरे वालिद साहब घर से 60 मील दूर सरकारी मुलाजिम थे। वो बिगड़ते हुए हालात की वजह से 1 महीने छुट्टी लेकर घर आ गए थे। इन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। वो मुझसे बहुत ही प्यार करते थे, मगर इस दफ़ा आए तो उनका रंग उड़ा हुआ था। फिर वो दिन आया कि बाहर शोर और भाग दौड़ सुनाई दी। किसी ने बताया कि सिखों ने हमारे स्कूल को और 2 मस्जिदों को आग लगा दी है। वालिद साहब घर नहीं थे और मेरे दोनों भाई भी घर नहीं थे। मेरी अम्मी पर्दा करती थी। वो बोरके के बगैर बाहर को दौड़ पड़ी। उसने मेरी परवाह ही न की। उसकी घबराहट देखकर मैं रोती उसके पीछे बाहर चली गई। मुझे याद है कि गली की औरतों और बच्चों से भरी हुई थी। इनमें कुछ मर्द भी थे। मेरी अम्मी उस हजूम में गायब हो गई थी, लेकिन जल्दी ही मुझे नजर आ गई। मेरे वालिद साहब उसे साथ ला रहे थे। इतनी रो रही थी और मेरे भाइयों के मुतल्लिक पूछ रही थी। गली में जो औरतें थी वो सब चिल्ला रही थी। वो अपने खामदों और बेटों को पुकार रही थी। वालिद साहब अम्मी को अंदर ले गए और वालिद साहब ने बताया कि सिखों ने हमारे स्कूल और 2 मस्जिदों को आग लगा दी है। वालिद साहब ने यह भी बताया कि सिखों ने कस्बे के मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शाम तक यहाँ से चले जाएं, वरना सब कत्ल कर दिया जाएगा। ये 15 अगस्त 1947 का दिन था। इस रोज हिंदुस्तान में आज़ादी का पहला दिन मनाया जा रहा था। हमारे शहर में हिंदुस्तानियों ने हमारी 2 मस्जिदें और 1 स्कूल जलाकर आज़ादी की तकरीब मनाई। पाकिस्तान में आकर मुझे पता चला था कि 15 अगस्त 1947 के रोज़ सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने मुसलमानों के खून से होली खेली थी और ये खूनी खेल बहुत ही दिन जारी रहा। इस रोज़ हमारे यहाँ सिखों ने मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि इन्हें जिंदा निकल जाने की मोहलत दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों मुसलमानों का खून हो। सिखों ने स्कूल और मस्जिद को वार्निंग के तौर पर आग लगाई थी। अपने घर से कौन निकलना चाहता है? सूरज गुरूब होने तक मुझे मालूम नहीं हुआ कि इतने मुसलमान घरों से निकलकर पाकिस्तान की तरफ चले गए। अलबत्ता हम नहीं निकले। फिर एक बड़े ही डरावने ख्वाब की तरह मुझे याद है कि रात को मैं गहरी नींद सोई हुई थी। एक जोर के झटके से मेरी आंख खुल गई। किसी ने मुझे उठा रखा था और दौड़ रहा था। डर से मैंने चीख मारी तो मुझे वालिद साहब की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुझे उठा रखा था ये समझने के लिए कि यह सब क्या है। मैं पूरी तरह बेदार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बचपन की नींद मेरे जहन को बेदार नहीं होने दे रही थी। मुझे ख्वाब की तरह याद है कि मेरी अम्मी और दोनों भाई साथ थे। एक की उम्र 12 साल और दूसरी की उम्र 16 साल थी।
ये भी याद आता है कि बहुत ही शोर था, चीखें भी थी और शोले भी थे। लोग भाग रहे थे, मैं जाग उठती और कभी गहरी नींद सो जाती। दिल पर जो खौफ तारी हो गया था वो भी याद है। और जब मैं पूरी तरह जागी तो मेरे सर पर कोई छत नहीं थी, इर्द गिर्द किसी मकान की दीवारें नहीं थी, ऊपर आसमान और नीचे जमीन थी, इर्द गिर्द खेतियां और वीराना था। मैंने सख्त घबराहट के आलम में गर्दोपेश का जायजा लिया। मुझे बड़े भाई ने कंधे पर उठा रखा था। वालिद साहब, छोटा भाई और अम्मी साथ थे और हम चलते जा रहे थे। हमारे आगे भी कुछ कुंबे जा रहे थे, कुछ पीछे भी आ रहे थे। कुछ लोग दाएं और बाएं दूर दूर भी कुंबे जा रहे थे। मेरी अम्मी रो रही थी, मेरा छोटा भाई रो रहा था। बड़े भाई की सांसें फूली हुई थी, वो हाँफ रहा था और थक गया था। मैं उसकी तरफ देखती थी मगर डर के मारे कुछ पूछती नहीं थी क्योंकि सब खामोश थे। मैंने इधर उधर और आगे पीछे देखा, मुझे अपना कस्बा नजर नहीं आ रहा था। मैंने सबकी खामोशी और गर्दोपेश से खौफजदा होकर रोना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने मुझे कहा, चुप हो जा, सिख आके मार जाएंगे। मेरा खून बढ़ गया। सूरज निकल आया था। वाले साहब ने मुझे चलने को कहा। बड़े भाई ने मुझे उतार दिया। मैं चलने लगी। मेरे पाँव में जूतियां नहीं थी। वाले साहब मुझे नंगे पाँव उठा लाए थे। मैं वाले साहब की उंगली पकड़े चलती रही, यानी के पाँव दर्द करने लगे और टांगे दुखने लगी। वो सब तेज चल रहे थे, मैं उनका साथ नहीं दे सकती थी। पीछे रह गई। वाले साहब ने मुझे उठाकर कंधों पर बिठा लिया। मैंने उसके सर को मजबूती से थाम लिया। सूरज सर पे आ गया और हमें जलाने लगा। मुझे भूख और प्यास परेशान कर रही थी। मैंने कई बार पानी मांगा। वाले साहब ने हर बार कहा, आगे चलकर पिलाएंगे। दूर से पानी नजर आया। उसके करीब एक कच्चा मकान था। वाले साहब ने उधर का रुख किया। बहुत देर बाद वहां हम पहुंचे, मगर वहां एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। वहां 5 लाशें पड़ी थी, एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चों की लाशें। उनके कपड़े खून से लाल थे। बच्चों में एक दूध पीता बच्चा था, उनकी उम्र 2 साल ना होती तो 3 साल होगी। तीसरा मेरी उम्र का था। मैं चौंके वाले साहब के कंधे पर थी, इसलिए मुझे लाशें अच्छी तरह नजर आ रही थी। मेरा कुंबा पानी पिए बगैर वहां से दौड़ पड़ा और मैं घूम घूम कर लाशें देखती रही। दहशत से मेरी जबान बंद हो गई। मैं ये भी पूछने से डरती थी कि इन्हें किसने मारा है। खौफ का ये आलम था कि मेरी भूख और प्यास मर गई। शायद मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। रास्ते में मैं वाले साहब मुझे कंधे से उतारने लगे तो मैं चीखें मारने लगी। बच्ची के लिए बाप रुस्तम जमा होता है। मैं अपने बाप से अलग नहीं होना चाहती थी, मगर वो थक गए थे। मुझे अम्मी ने उठा लिया और सूरज गरूब होने लगा। हम एक जगह रुक गए, सब बैठ गए। मैं बच्ची थी, सो गई। फिर 16 अगस्त 1947 की सुबह तलू होती। रात को मैं कई बार डर कर जाग उठी। हम सब जमीन पर सोते थे, खाया कुछ भी नहीं था। सुबह मैं भूख से रोने लगी तो वाले साहब ने मुझे बहुत प्यार किया और जितनी मेरी समझ में आता था मुझे बताया। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जिनमें से सिर्फ ये याद रह गई है कि पाकिस्तान में हमारा अपना घर होगा और वहाँ हमें बहुत अच्छी रोटी मिलेगी। फिर मुझसे बड़ा भाई, जिसकी उम्र 12 साल थी, मेरे पास बैठ गया। उसने मेरे वाले साहब की तरह बातें की, मुझे समझाया कि पाकिस्तान क्या है और हिंदुस्तान और सिख हमारे दुश्मन हैं। ये बातें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं और मेरा भाई बचपन में ही जवान हो गए। हम चल पड़े। पहला कदम उठाते ही मुझ में ऐसी तब्दीली आई कि मैं पत्थर बन गई। जान गई कि मेरे माँ बाप मेरे पेट में कुछ नहीं डाल सकते। वो खुद भूखे और प्यासे थे, फिर भी इन्हें बच्चों का गम था। बहुत सारे लोग इसी सिमत को जा रहे थे जिधर हम जा रहे थे। मेरे वालिद साहब हमसे अलग होकर उन लोगों में जा मिले। उन लोगों की तादाद थोड़ी नहीं थी। कुछ देर बाद वालिद साहब आए। उनके पास बुने हुए चने थे। उन्होंने खुद एक दाना भी मुंह में नहीं डाला।
مجھے اور میرے بھائیوں کو دے دیے۔ میرے بڑے بھائی نے امی کو دیے، مجھے اور میرے بھائیوں کو دے دیے، لیکن اس نے نہیں لیے۔ دریا ستلج سے کچھ دور پیچھے ہم نے ایک جوہر سے گندا پانی پیا، جس سے جسم میں جان آ گئی اور ہم نے دریا ستلج کا پل پار کیا۔ ان جگہوں کے نام مجھے بہت عرصہ معلوم ہوئے تھے۔ ہم گندا سنگھ والے سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ آگے کہانی جاری ہے، اگلا پارٹ دوسری ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی مختصر کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔